Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we will be continuing with the topic trigonometric functions of particular angles for chapter 2 trigonometry part 1 of M1 of standard 11. अब देखो इससे पहले जो वीडियो था उसमें हम देख चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर द एंगल्स इन सेकंड क्वाड्रेंट, जिसमें हमने कुछ तीन स्पेसिफिक एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखे थे और वो तीन स्पेसिफिक एंगल्स थे 120 डिग्री, 135 डिग्री एंड 150 डिग्री. In today's video, we will be seeing the trigonometric functions of angles in third quadrant और इसमें भी कोई तीन specific angle हमें देखना है, वो है 210 डिग्री, 225 डिग्री and 240 डिग्री. Okay, out of which we will study the trigonometric functions for the angle having measurement 225 degree or 5 pi by 4 radian. Now see here, consider a standard unit circle with center at origin having x coordinate 0, y coordinate 0. Major angle XOA is 225 degree or 5 pi by 4 radian. Okay, this is the major angle XOA. Okay, 225 degree or 5 pi by 4 radian. Its terminal arm ray OA intersects the circle at point P having x coordinate x and y coordinate y. Now ये जो point P है इससे x axis पे perpendicular draw करना है हमें. Draw PM perpendicular on x axis. ऐसा करने पर length of OM will be x, length of PM will be y. Now OP is radius of unit circle. This OP is radius of unit circle. Therefore length of OP will be 1 unit. Now see here, major angle XOA is 225 degree. ये major angle XOA 225 degree है. Now here major angle XOA मतलब मेजर एंगल XOX डैश, मेजर एंगल XOX डैश प्लस मेजर एंगल POM इज इक्वल टू 225 डिग्री. ओके, क्योंकि ये जो मेजर एंगल XOA है इसे हम ऐसा लिख सकते हैं मेजर एंगल XOX डैश प्लस मेजर एंगल POM, यानी पूरा कवर हो जाएगा. ओके, दिस इज एंगल एडिशन पोस्टुलेट. और XOX डैश स्ट्रेट एंगल होने की वजह से इट इज 180 डिग्री. मेजर एंगल POM का मेजरमेंट हमें पता करना है. अब ये 180 है, लेफ्ट साइड में राइट में जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा. सो मेजर एंगल POM विल बी 225 डिग्री माइनस 180 डिग्री यानी 45 डिग्रीज. ओके, आपका मेजर एंगल POM कितना हो गया? 45 डिग्रीज. इसे 1 नाम दे दो, इसका यूज है अपने आगे. अब देखो, in right angled triangle this PMO, angle PMO is 90 degrees by construction. Then angle POM is 45 degree from 1. Therefore this remaining angle MPO will be 45 degree. Reason remaining angle of the triangle. And therefore triangle PMO is 45, 45, 90 triangle. And we know in 45, 45, 90 triangle साइड्स अपोजिट टू 45 डिग्री का एंगल इज 1 बाय रूट टू द हाइपोटेन्यूज. और यहाँ पर दिस एंगल इज आल्सो 45 और ये इतना एंगल अगर आप देखोगे तो ये भी 45 है. एंड साइड अपोजिट टू देम आर, ये 45 डिग्री के अपोजिट साइड OM इज इक्वल टू इस 45 डिग्री का अपोजिट साइड PM. and both will be equal to 1 by root 2 the hypotenuse OP, side opposite to 45 degrees.
इसका मतलब x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1/√2 इंटू OP इज 1, मतलब x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1/√2, बट here point P lies in third quadrant, and third quadrant में x और y दोनों ही कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव होते हैं, so therefore x is equal to y is equal to both will be -1/√2. so आपको x और y का वैल्यू मिल गया. नाउ नेक्स्ट फ्रेम में हम देखेंगे बाय डेफिनेशन cos थीटा इज x/r एंड sin थीटा इज y/r, और उसकी मदद से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर द एंगल 225 डिग्री फाइंड करेंगे. ओके, अब देखो x और y दोनों ही -1/√2 है. ओके, सो बाय डेफिनेशन cos theta is x/r, therefore cos 225 degree is x is -1/√2, radius is 1, so cos 225 degree is -1/√2. Then sin theta is y/r, so sin 225 degree is -1/√2 upon 1. So now see sin 225 degree is -1/√2. इसके बाद tan theta is sin theta upon cos theta. So tan 225 degree is sin 225 degree upon cos 225 degree, which is -1/√2 अपॉन -1/√2. दोनों कैंसिल आउट होंगे, सो tan 225 डिग्री इज 1. ओके, देन कम्स cot थीटा विच इज 1 अपॉन tan थीटा. सो cot 225 डिग्री इज 1 अपॉन tan 225 डिग्री, यानी 1/1. सो देयरफॉर cot 225 डिग्री इज 1. Then next is sec theta is 1 upon cos theta. So sec 225 degree is 1 upon cos 225 degree. So it is 1 upon -1/√2, और -1/√2 का रेसिप्रोकल -√2 होगा. So sec 225 degree is -√2, and at last cosec 225 degree is 1 upon sin 225 degree. ओके, sin 225 डिग्री इज -1/√2, उसका रेसिप्रोकल अगेन -√2, सो cosec 225 डिग्री इज -√2. सो दीज आर द trigonometric functions for the angle having measurement 225 degree or 5 π/4 radian which lies in the third quadrant. Okay, अब देखो हम पिछले फ्रेम में देख चुके हैं हाउ टू फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर द एंगल हैविंग मेजरमेंट 225 डिग्री व्हिच लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट के और दो एंगल्स के मेजरमेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमें देखना है, वो है 210 डिग्री और 240 डिग्री. अब सपोज 210 डिग्री का एंगल जब हम तैयार करते हैं, ओके, सो ये देखो ये ट्राइंगल में ये एंगल 30 डिग्री का आ जाएगा. ओके, ये एक एंगल 90 डिग्री है, सो दिस रिमेनिंग एंगल विल बी 60 डिग्री. सो जब आप 210 डिग्री के लिए सॉल्व करते हो तो जो ट्राइंगल तैयार होता है वो 30 60 90 ट्राइंगल होता है, और उसमें साइड अपोजिट टू 30 डिग्री. ओके, ये x है, ये y है. ओके, सो यहां पर y जो आएगा वो हाफ आएगा, और x जो आएगा वो √3/2 आएगा. लेकिन ये x और y ये दोनों ही थर्ड क्वाड्रेंट में लाया करते हैं, इसलिए दोनों ही निगेटिव आएंगे. अब यही हम यदि आगे बढ़ के 240 डिग्री का एंगल देखते हैं, सपोज ये ऐसा y एंगल आएगा. ओके, 240 डिग्री का एंगल रहेगा. 240 डिग्री एंगल के लिए ये ऐसा एक ट्राइंगल आएगा, यहां पर ये एंगल 60 डिग्री रहेगा और ये 30 डिग्री रहेगा. ये ट्राइंगल भी 30 60 90 ट्राइंगल रहेगा, पर इसमें जो x रहेगा दैट विल बी साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, जबकि 210 डिग्री के लिए जो ट्राइंगल आया था वहां पर x था वो साइड अपोजिट टू 60 डिग्री था. तो यहां पर जो x आएगा 240 डिग्री एंगल के लिए, अब देखो ये 210 के लिए है, 240 डिग्री एंगल के लिए जो x आएगा वो रहेगा हाफ और y रहेगा √3/2. पर अगेन
दिस पॉइंट P लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो x भी निगेटिव रहेगा और y भी निगेटिव रहेगा। मतलब इन शॉर्ट आप ये समझ लो कि जो भी ट्राइंगल्स रहेंगे वो या तो 30 60 90 ट्राइंगल रहेगा या 45 45 90 ट्राइंगल रहेगा। ओके, और x और y के वैल्यूज जो है जब 30 60 90 ट्राइंगल रहेगा तो हाफ और √3/2 में ही शफल होंगे। ओके, और 45 45 90 ट्राइंगल रहेगा तो x और y के वैल्यू तो 1/√2 ही आना है। बस इतना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1/√2 आएगा, x और y का वैल्यू दोनों पॉजिटिव रहेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में x निगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में x भी निगेटिव y भी निगेटिव, और जब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो वहां पर x पॉजिटिव और y नेगेटिव रहेगा। ओके,